Okay, so the lecture is on the basis of the curd. The curd is nothing but that is one type of fermented milk product that is also known as dahi. Okay, we have to also know as dahi. And so which process will be happen in the formation of the curd, that is present in this condition. Okay, so the what is the principle, the base on the curd formation? The curd formation by the lactic acid bacteria. This lactic acid bacteria is conversion of the lactose sugar which have to already available in the milk, that is conversion in lactic acid. The lactic acid is one type of acid. Whenever the lactic acid bacteria is a large amount of the it have to more and more production of the lactic acid from the lactose sugar. So the pH of the milk it will be increasing. pH है क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एसिडिक होने, ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होने लगेगी. दूसरा है कि अगर इस मिल्क की पीएच बढ़ती रहती है, इसकी वजह से जो कैसिन प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर, वो कैसिन प्रोटीन क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा. The degradation means that is conversion of the protein in their tertiary and secondary structure. Okay, and so that's why what situation will be happen, the precipitation of the milk will be happen and the formation of the curd. So the milk in this condition of the casein protein is most important role. If the casein is present in the milk, so that's why that is a milk is coagulation. Without casein there can be not coagulation. Milk in only for not only for one protein is casein is available. The another protein is whey protein will be also available in the milk. Okay. So next one is the some basic concept about the milk. Okay, so milk is a complete food. We have to also know about that the milk is complete food, and it is also to contain of the casein. It is also known as globulin protein. That is a milk in present of 80%. After the second is a fat is present in the milk. Some vitamin is present like a B12 and multiple vitamins is present. Some minerals is present. Okay, multiple minerals will be available in the milk. After the sugar is a lactic acid which have to already available in the milk. After the lactose sugar is a present in the milk. This lactose sugar is a conversion of the lactose sugar is used by the bacteria and the formation of the lactic acid. Lactose sugar is also known as disaccharide because the lactose sugar is a degradation by the lactase enzyme which have to production by the bacteria, and it is conversion in the glucose and galactose. This glucose and galactose is joined by the one bond that is called as glycosidic bond. That is another name is called as covalent bond. So that's why the combination of the glucose and galactose sugar and the formation of the lactose. Okay, so next one is anaerobic process. This lactose fermentation by the lactic acid bacteria, that is all have to process will be present the absence of the oxygen. Okay, so it called as anaerobic process. In this condition, what situation will be happen? The glucose and galactose sugar. This is available of glucose and galactose sugar. That is the glucose is goes to EMB pathway. इसको EMB को बोलते हैं embedded Markov pathway, जिसको तुम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हो ना. और ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट क्या होती है? पायरुविक एसिड होती है. पायरुविक एसिड बनेगा, एटीपी बनेगा, और फिर क्या होगा? फिर इसका लैक्टोज डिहाइड्रोजनेस एंजाइम आएगा और प्रोडक्शन क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा. और दूसरा है कि गैलेक्टोज में भी ये होता है. गैलेक्टोज में क्या होता है? गैलेक्टोज में से ट्रेगेटोज पाथवे चलता है उसका, और फिर क्या बनता है? पायरुवेट और एटीपी बनता है और उसमें से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. तो इसके बाद है कि फर्मेंटेशन क्या है? वो लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है. पर तो क्वेश्चन हमारी माइंड में ये रहता है कि भाई फर्मेंटेशन क्या है? Fermentation is nothing but that is the enzyme catalyzed metabolic process. In this condition, the microorganism will be a sugar is conversion. In anaerobic process, the alcohol and energy will be formation. Okay, तो कोई भी fermentation हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो बनेगी. लुइस पास्चर है, उसने फर्स्ट इसकी डेफिनेशन दी है फर्मेंटेशन की. ओके, तो फर्मेंटेशन होता है. दूसरा है फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस है, लैक्टिक एसिड प्लस केसिन. ओके,
लैक्टिक और एसिड और कैसिन की जो प्रोसेस होती है इसकी वजह से ही कर्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये कैसिन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में चलता है। तो कैसिन है वो एक टाइप का क्या है, प्रोटीन होता है। जैसे स्मॉल ग्लोबुलिन प्रोटीन देख रहा है। कैसिन कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। सबसे ज्यादा कैसिन किसके मिल्क में होता है, काऊ के मिल्क में सबसे ज्यादा कैसिन होता है। इसकी वजह से उसका मिल्क कैसा होता है कि येलो कलर का उसका मिल्क देखा जाता है। आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द कर्ड, ओके, तो मान लो कि अब मुझको कर्ड बनाना है। इंडस्ट्री में कैसे कर्ड बनता है, हाउ इज मेड ऑफ द कर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफली द सिलेक्शन ऑफ मिल्क which have to is a it have to also contain of the high amount of the सॉलिड ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जो इसमें क्या होता है कि उसमें एडिशन किया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, एसएनएफ को एडिशन करते हैं। एसएनएफ का मीनिंग होता है सॉलिड नॉट फैट। इसके बारे में मैं बताऊंगी, पहले यहाँ का सिलेक्शन ऑफ मिल्क बताती हूँ। सिलेक्शन ऑफ मिल्क करना है, जनरली बफेलो का मिल्क का सिलेक्शन करते हैं क्योंकि दैट इज अ थिकनेस इज अ वेरी हाई कंपेरिजन टू अनदर मिल्क। After the preheating process will be happen, the preheating in the we have to condition of preheating में क्या करते हैं, हम हीट अप्लाई करते हैं 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप्लाई करते हैं। आफ्टर हम इसका क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन होने के बाद उसको स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसको प्रॉपरली थिकनेस उसकी कर्ड की रखनी है। इसलिए इसमें एडिशन ऑफ द स्किम मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर को एडिशन करते हैं। अब ये स्किम मिल्क पाउडर क्या है कि जिसके ऐसा पाउडर कि जिसके अंदर फैट इतना हो और एसएनएफ है वो इतना हो। अब एसएनएफ की बात करूँ तो एसएनएफ का फुल फॉर्म होता है सॉलिड नॉट फैट होता है। क्या होता है, सॉलिड नॉट फैट होता है। इसमें तुम अगर मिल्क के अंदर से वाटर और फैट को निकाल दो और बाकी का जो बचता है, तो बाकी का जो बचता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये मैं फैट को निकाल दे तो क्या बचेगा, कैसिन बचेगा, विटामिन बचेगा, मिनरल्स और शुगर को यहाँ मिल्क में बचेगा। अच्छा, तो अब मैं बात करती हूँ, अब यहाँ फिर से आ जाता है। अब फिर क्या करते हैं, फिर से उसको प्रेहीटिंग करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस और उसको होमोजिनेशन यानी कि प्रॉपरली मिक्स करना। अब ये होमोजिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें इंडस्ट्री में तो होमोजिनेटर है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मिल्क को हाई प्रेशर से मिल्क का फ्लो कराते हैं होमोजिनेटर में। और उसमें जो मिल्क के अंदर फैट होता है वो क्या होता है, वो फैट है वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्जेशन होता है। ओके, फैट है वो तो उसके मॉलिक्यूल साइज अगर मान लो कि ज़्यादा है तो वो ब्रेक हो जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्जेशन हो जाएगा और फिर उसका पास्चराइजेशन किया जाता है। पास्चराइजेशन के प्रोसेस 1986 में लुइस पास्चर ने दी थी। पास्चराइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द एनी काइंड ऑफ मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री बिकॉज विथआउट पास्चराइजेशन वी कैन नेवर टू killing of the microorganism which have to already the spoil of our food and our dairy product। क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं कि जो क्या बहुत सारी फंजाई होती है, बहुत सारे ईस्ट होते हैं जो क्या करते हैं कि मिल्क को स्पॉइल करके रखते हैं। इसके लिए हमें पास्चराइजेशन करना पड़ता है। पास्चराइजेशन के बाद 80 to 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 20 मिनट्स है। पास्चराइजेशन की प्रोसेस में ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो सभी इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। यहाँ इतना है, इतना याद रखना। फिर उसको क्या किया जाता है, कूलिंग किया जाता है, क्विकली उसको कूलिंग किया जाता है 42 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसमें क्या करते हैं, हम स्टार्टर कल्चर को एडिशन करते हैं। अब स्टार्टर कल्चर क्या है कि स्टार्टर कल्चर यानी कि बैक्टीरियल कल्चर। इसमें हम क्या डालेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालेंगे क्योंकि हम कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसमें 1 से हमारा पूरा 100% अगर मान लो तो 100% में हम 1 to 1.5% हम स्टार्टर कल्चर को एडिशन करेंगे और फिर हम उसको इंक्यूबेशन करेंगे 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 to 7 आवर इन द इंक्यूबेटर में डालेंगे। अब फिर हम उसको कूलिंग करके रखेंगे। ओके, कूलिंग करना है। कूलिंग करने के बाद हम उसको अगर मान लो कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी मार्केटिंग नहीं हो रहा है तो स्टोर करके रखना होता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि भाई ये कंडीशन तो है, आपने ये सभी कुछ बता तो दिया, पास्चराइजेशन के बाद हम अगर मान लो कि पास्चराइजेशन के बाद कूल करके फिर ही हमें स्टार्टर कल्चर एडिशन करना पड़ता है क्योंकि पास्चराइजेशन में हम हाई हीट अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम डायरेक्टली स्टार्टर कल्चर पास्चराइजेशन के बाद डाल देंगे तो वो तो ही हॉट मिल्क होगा ना, उसमें जो डालेंगे लिविंग माइक्रोजम तो वो सारे मर जाएंगे तो तुम्हारा कर्ड बनेगा ही नहीं। इसलिए पास्चराइजेशन के बाद कूल करना पड़ता है और फिर हम स्टार्टर कल्चर को एडिशन करते हैं।
दूसरी बात यह है कि हम क्यों पहले से, अगर मान लो कि पहले से हम क्यों स्टार्टर कल्चर एडिशन नहीं करते, क्योंकि पहले से माइक्रोरिज्म, अगर पहले से ही हम स्टार्टर कल्चर को डाल के रखे तो क्या हो जाएगा, हीट तो ज़्यादा अप्लाई हो रही है, इसलिए फिर माइक्रोरिज्म है वो मर जाएंगे. ओके, दैट कैन बी डिस्ट्रॉय इन द किल. So after the another condition is that incubation is most requirement. ओके, इंक्यूबेशन करने के लिए हमें उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका टेम्परेचर है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर है प्रॉपर होना चाहिए, तो ही माइक्रोरिज्म है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे. ओके ओके, तो टेम्परेचर भी वरी करता है. तो ये सारी प्रोसेस है इसके अंदर चलती है. दैट इज अ फ्लो चार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री. ओके, that is a industry in the this kind of flow chart will be happens. Okay, so what is the benefits? The curd is a great probiotic. Probiotic का मतलब होता है, probiotic है यानी कि क्या है, ऐसा माइक्रोरिज्म जो हमारा गुड गट माइक्रोरिज्म है, यानी कि हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गुड गट माइक्रोरिज्म बोला जाता है. और उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है. थैंक यू सो मच.